Hey kids, how are you all? I am Nisha teacher from Ashwamek Vidyalaya. We are doing section B literature in GK book chapter number 1. We have completed two quizzes, right? So three quiz. Today we will see about this literature. We have seen world literature. हमने ये पेज देखा था that how in ancient time they were writing in different ways like poetry, and our greatest some and oldest books like Ramayana, Mahabharat, they are the form of poem, they are in the form of epic poem, right? And we have seen some civilization and mythology यानी कि मान्यता मान्यता माइथोलॉजी मीन्स कि हमारी जो मान्यता होती है कुछ चीज़ों के बारे में, वो हमने देखा. एंड वी हैव सीन वन स्टोरी ऑफ द म्यूसिस एंड हिज 9 डॉटर. यस, हमने ये देखा था ना. वी हैव सीन द स्टोरी ऑफ प्लेस म्यूसिस where it has been come in Greek, right? And the daughter of Zeus and Minomedes, a daughter of Uranus and Gaia. Mnemosyne is the personification of memory, which was of great importance to poet of olden time as there were no books and literature had to be memorized. पहले के ज़माने में बुक्स और कुछ भी मेमोराइज यानी कि याद रखने के लिए कुछ नहीं था. सो दे वर doing it in the form of poem. Okay, now we go to the next page. The muses are Calliope for epic poetry, Thalia for comedy. The muses are यानी कि as we studied before, these muses are invoked or inspired by the 9 daughters. They are the 9 daughters. यानी कि ये मान्यता थी कि ये लोग 9 daughters थी. कैलियोप, यूटेर्प, इराटो, टर्पिस्चोर, मेलोपोनी, टैपिस्चोर, मेलोफोमेनी, थालिया, पॉलिमनिया, सिलियो, यूरानिया, ये 9 daughters थी. ओके, these were the 9 daughters of that person. Okay, and what they were doing? Calliope for epic poetry बनाती थी. Itrope for music, she was famous for music. Erato for lovely poetry, for music, for love poetry. Etro was famous for love poetry. Love means prem geet. Okay. Terpsichore for dance. This girl was famous for the dance. Melpomene for tragedy. Thalia for comedy. Philophemenia for scared poetry. Yes, scared poetry भी होती थी, ये तो हमें नहीं पता था. Cilio for history. Urania for astronomy. Yes, now see, Western European literature has its ancestry in Greek literature and its various forms: lyric or epic poetry, tragedy or comedy, all come from ancient Greek poetry and drama. ये सब कहाँ से आया था? वेस्टर्न यूरोप लिटरेचर से, इन ग्रीक में आया था. ओके, एंड ये जो लिरिक और एपिक पोएट्री है
बाद में ट्रेजेडी और कॉमेडी, ऑल कम फ्रॉम एंशंट ग्रीक पोएट्री एंड ड्रामा, ये सब ड्रामे में से आया है, उसका अलग अलग नाम है. ओके, लेट्स सी द फर्दर. पेन पोर्ट्रेट्स ऑफ सम लिटरेरी ग्रेट्स. पेन पोर्ट्रेट्स of some literary greats means some poets के बारे में हम जानेंगे. Okay, poets who have written some stories or poems. Okay, and one more thing, you must have heard about this in your English subject also, like William Shakespeare, Charles Dickens, right? Let's see. William Shakespeare, 1564 1616. Not much is known about the world's probably greatest playwright, especially about his early life. Not much is known about the world probably greatest playwright. कुछ ज़्यादा जाना नहीं है किसी ने उसके अर्ली लाइफ के बारे में, बट येस ही वॉज अ वेरी ग्रेट प्ले राइट. प्ले मीन्स ड्रामा राइट करता था. ही वॉज बॉर्न इन स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन, ये एक प्लेस का नाम है. ही बेगन हिज कैरियर एज अ पोएट, एक पोएट के जैसे उसने शुरुआत की थी. एंड रोट सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉनेट्स, बहुत सारी उसने स्टोरीज पोएम वगैरह लिखी थी. लेटर ही वेंट टू लंडन, वो लंदन चला गया बाद में. बिकॉज एन एक्टर एंड राइटर विथ वन ऑफ द थिएटर कंपनीज. एक्टर और राइटर विथ वन ऑफ द थिएटर कंपनीज, वो किसके साथ चला गया, वो क्यों चला गया. बिकेम अ एक्टर, एक एक्टर बनने गया, एक राइटर बनने गया इन द थिएटर कंपनीज. ही रोट ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, क्रॉनिकल हिस्टोरीज, रोमांटिक कॉमेडीज विथ द कैरेक्टर्स मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्टोरी. ऐसे कैरेक्टर्स के साथ लिखता था जो स्टोरी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो. कॉमेडी लिखते थे, रोमांटिक पोएम कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडीज लिखते थे, हिस्ट्री लिखते थे, राइट. हिज कंप्लीट कलेक्शन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड ओनली इन 1623. ओ मीन्स उनके मरने के बाद, यस, 7 years आफ्टर हिज डेथ. यानी कि जो उसका पहला कलेक्शन, यानी कि जो उसकी पहली बुक थी, वो उसके मरने के 7 साल बाद उस पब्लिश हुई थी. चार्ल्स डिकेंस 1812 to 1870. He was probably the greatest 19th century English novelist. नॉवेलिस्ट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ बुक वेयर नॉवेल यानी कि पिक्चर में से स्टोरी बनती है. हिज बेस्ट वर्क डिपिक्ट सम ऑफ द मोस्ट हॉरिबल सोशल कंडीशंस ऑफ दिस हिज टाइम. हिज बेस्ट वर्क डिपिक्ट सम ऑफ द मोस्ट हॉरिबल सोशल कंडीशन मीन्स उस टाइम की जो सोशल, यानी कि आजू बाजू की जो, अभी कैसे कोरोना चल रहा है, ये हमारा सोशल हो गया, मीन्स हमारा सराउंडिंग के बारे में उसने, सोशल कंडीशन के बारे में उसकी डिपिक्ट अच्छी रही होगी. नॉवेल्स यानी कि नॉवेल्स भी लिखते थे, कॉमेडी नॉवेल्स भी होती है, बाद में कई चीज़ पे हम नॉवेल लिख सकते हैं. द मिसरीज ऑफ चाइल्ड वर्कर, द पुअर, द बोर्डिंग हाउसेस एक्सेट्रा. दे वर लाइक मीन्स सोशल, आजू बाजू में क्या हो रहा है उसके बारे में. मिसरीज ऑफ चाइल्ड वर्कर कैसे थे पुअर लोगों पे, बोर्डिंग हाउसेस, बोर्डिंग स्कूल में कैसे पढ़ाते थे, उसके बारे में उसने सब लिखा हुआ था. ऑलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम्स एंड डेविड कॉपरफील्ड आर बुक्स विच कंट्रीब्यूटेड टू social reforms in England.
ये जो है सब ये बुक्स के नाम है जो उसने कंट्रीब्यूट किए थे सोशल फॉर्म्स रिफॉर्म्स के लिए। सोशल यानी कि रिफॉर्म्स मीन्स कि जो हमारी क्या हो रहा है, घटित हो रहा है हमारे आजू बाजू, ये चाइल्ड लेबर के बारे में, इन सब के बारे में उसने ये बुक लिखी थी। और जो घटित हो रहा है उसको सुधारने के लिए उसने ये बुक लिखी थी जो इंग्लैंड में थी। However, Dickens had a wonderful humorous side to him which is seen in the Pickwick paper. उसके बारे में ह्यूमरस एक मीन्स शायद बुक हो सकती है जो पिकविक पेपर के नाम से भी जानी गई थी। ओके, इंडियन लिटरेचर। द ओल्डेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड आर द वेदास। Vedas are the oldest literature. Most of the Indian literature, like any other ancient literature, is religious in nature. वेदास यानी कि हमारे आयुर्वेद, हम ये सब पुराने ज़माने से ही चलता आ रहा है। मोस्ट ऑफ इट वॉज रिटन इन क्लासिकल संस्कृत। ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें संस्कृत में लिखी गई थी। तमिल लिटरेचर डेटिंग बैक टू 1st to 5th सेंचुरी एडी। मीन्स तमिल लिटरेचर जो था वो 1st सेंचुरी to 5th सेंचुरी तक चला था। हैड नो इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत। तब तक संस्कृत के बारे में कुछ जानकारी निकली नहीं थी। ओनली फ्रॉम 1200 एडी मेन इंडिजिनस इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर टुक बर्थ। बाद में 1200 एडी से ये सब चालू हुआ, राइट। इंडियन लिटरेरी क्रिट्स। अश्वघोषा 2nd सेंचुरी एडी। अ बुद्धिस्ट फिलोसोफर, बुद्धिस्ट यानी कि बुद्धा, पोएट एंड गुरु ऑफ टू किंग कनिष्का। He was one of the first individual literary writer of Indian whose work survive। यानी कि ये बुद्धा जो थे उनकी, बुद्धा एंड गुरु टू किंग कनिष्का, वो राजा भी थे कनिष्का के, और उन्होंने फर्स्ट इंडिविजुअल लिटरेरी राइटर, वो हमारे इंडिया के पहले राइटर थे। ही रॉट टू प्रोपेगेट महायाना बुद्धिज़्म। उन्होंने पहली मीन्स लिखा था बुद्धिज़्म, यानी कि बुद्धिस्ट लोगों की बुक थी। ही रोट अ बायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्ध, यानी कि ये बुद्धिस्ट फिलोसोफर, बुद्धिस्ट क्या बोलते हैं, कल्चर का जो एक राजा था, गुरु था, उनके गुरु के बारे में यानी कि बुद्धा के बारे में उन्होंने लिखा था। बुद्ध चरित्र एंड अ ड्रामा। सारिपुत्र प्रकारमा, लेजेंड ऑफ द डिसिप्लिन सारिपुत्र, यानी कि ये सारिपुत्र और बुद्ध चरित्र, गौतम बुद्ध के बारे में उसने लिखा था, और एक ये डिसिप्लिन ऑफ सारिपुत्र के बारे में लिखा था। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट, लेट्स सी। इतना ही है, चलो कंप्लीट ही कर देते हैं, है ना। यस, the next our writer is Rabindranath Tagore. Yes, everyone knows about Rabindranath Tagore. He is a famous poet of our India. He has also written our national anthem Jana Gana Mana, right. His birth was 1861 to 1941. Poet, painter, philosopher, educationist and literature. R.N. Tagore यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर was Indian first Nobel literate in 1913. 1930 में literate हुए थे. He wrote poetry as a child, with his first book appearing at the age of 17. At the age of 17 इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी. He wrote poetry, short stories, novels, plays, ballads and hundreds of popular songs. बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी. Today his genre of song is known as रविंद्र संगीत. उनकी जो मीन्स गाने थे वो सब रविंद्र संगीत के नाम से जाने जाते हैं. He wrote in Bengali,
बट ट्रांसलेट हिज ओन वर्क इनटू इंग्लिश। वो पहले इंग्लिश में बंगाली में लिखते थे और फिर उनके काम को वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते थे। ही स्टार्टेड अ स्कूल इन 1901, शांति निकेतन। येस, इट इज़ स्टिल देयर। एक स्कूल चालू की थी 1901 में, जो शांति निकेतन के नाम से जानी गई, विच लेटर ग्रू to the Vishwabharati University. Yes, today it is world famous as a Vishwabharati University. His writings are deeply religious and also shown his great love of nature and the country. उनकी जो राइटिंग, वो भी जो भी लिखते थे वो बहुत डीप मीनिंग का था, अपने देश के लिए और अपने नेचर के लिए भी वो लिखते थे। ही वॉज knighted in 1915 but gave up his title following the जलियनवाला बाग मैसावी। यस, जलियनवाला बाग के बारे में आपने आपके सोशल स्टडीज़ में भी स्टडीज़ किया होगा या फिर करेंगे। ओके देन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे, सी यू।